Hello, warriors. I am Arpita Sharma and welcome to Super Kalam. I am your teacher and your mentor here. Today, it's a very important class, plus, it's the most requested class that I'm taking. Why? Because this is on how to approach art and culture. Art and culture is one such topic which is UPSC's quite favorite when it comes to GS paper 1 and history. Why? Because art and culture is very diverse and our India's history is so rich कि art and culture को जितना पढ़ो ना उतना कम लगता है. And that is why students sometimes they get scared, ma'am, how to cover art and culture? It's so diverse. We have such a rich history, cultural past. So how to, from where to start? It is not very well defined in our syllabus also. So how to start, from where to start, how to cover it? And whenever we start covering it, we tend to forget things. तो क्या करें इसके अंदर? First thing is, you do not have to get worried about approaching art and culture because this is my favorite subject. I've been teaching art and culture since like last 4 5 years. So that is why, plus I have observed the previous year question papers also very keenly, because when we teach we also go back to the roots of UPSC, which is the previous year questions. और इसलिए थोड़ा सा समझ आने लगा है कि आर्ट एंड कल्चर को लेके यूपीएससी किस तरीके से सोचता है. Art and culture is prominently seen in both UPSC prelims exam and mains exam. GS paper 1 is art and culture heavy when it comes to history. Now, today in this class, I'm going to live demonstrate how you need to approach art and culture. Okay, live demonstrate मतलब मैं आपको live बताने वाली हूँ sources जहाँ से आप art and culture cover कर सकते हो. Okay, so I hope that all of you have your registers with you. आप लोगों के पास registers होने ही चाहिए. I hope that all of you have your syllabus of UPSC with you and start taking notes and let's start understanding how to strategize for this subject. When we talk about UPSC examination, we know that in UPSC we have two starting ke parts, which is first is the prelims, and once you clear prelims, you get to enter the main stage, and then the personality interview round, right? Now, when we talk about prelims, we know that in prelims we have history, and history may we have ancient history, we have medieval history, we have modern history. World history is not a part of your prelim syllabus, okay? But in mains we have ancient history also, we have medieval, we have modern, and we have over here world history also. But the best part here is that in ancient medieval history you will see it is art and culture heavy, matlab the focus is on art and culture. That means when you prepare ancient and medieval history in prelims, you need to prepare the art and culture associated with it. Same applies for modern history also. In modern history, गांधी जी के अराइवल से, फ्रॉम द अराइवल ऑफ गांधी जी, ठीक है, गांधी जीज अराइवल टिल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. बट इसी के अंदर आप देखोगे कि फोकस बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पे भी किया गया है. ठीक है, मतलब यू कैन से दैट 40% आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड रेस्ट 60% इज योर स्टैटिक आर्ट, जो आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं. बट एंशियंट एंड मिडिवल इज आर्ट एंड कल्चर हैवी. So whenever you are studying about Mughal period, whenever you are studying about modern empire, Indus Valley civilization for that case, you need to make sure that your attention is heavy on art and culture. For example, Indus Valley civilization, art and culture वहाँ का कैसा था? Terracotta paint, statues and dancing girl bronze statue, the priest statue. Then we have the Pashupatinath image, the seal, the symbols on the seal, बॉस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं डिकोड या फिर डेसिफर हुई है. Okay, then what kind of granaries or what kind of ritualistic places were found in Indus Valley civilization. ठीक है, so all of these aspects are important. Vedic civilization में art and culture बहुत important हो जाता है. ठीक है, different types of pottery, then different types of art forms, theater forms, dance. Okay, one more interesting fact I'll tell you कि the dancing girl bronze statue of Indus Valley civilization, it is in the position of Odissi dance form because it is in the posture of Tribhanga. Tribhanga means three bends. हेड बेंट है, हाथ बेंट, कमर बेंट है और लेग बेंट है, तो वो त्रिभंग हो गए, थ्री बेंट्स हो गए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो पहले तो आप क्लैरिटी समझ जाओ कि अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री से अलग नहीं है. आर्ट एंड कल्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम हिस्ट्री, इट इज
amalgamated, it is intermingled in history only. Okay, तो सिलेबस क्लियर हो गया दिमाग में, यू हैव द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री इन योर गिवन टू यू बाय योर यूपीएससी, राइट? एंड नाउ दैट यू हैव द सिलेबस, यू नो कि आर्ट एंड कल्चर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक रिसोर्सेज, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है. यू स्टार्ट स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री कैसे? क्लास 11 से 12th की एनसीईआरटीज. If you have Tamil Nadu State Board books of class 11 to 12th, that is also wonderful, because Tamil Nadu State Board books are very precisely covered. They have precisely touched upon every aspect of history. Okay, हर aspect को touch किया है ancient medieval के history को. Especially the Vedic civilization part is touched very beautifully. Even in our focus batches na, we teach through Tamil Nadu State Board books. एनसीईआरटी से भी पढ़ाते हैं, बट तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स की भी हेल्प लेते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड फ्रॉम दैट बुक एज वेल. ठीक है, तो आप फोकस बैच में हो अगर ऑलरेडी, तो आपको पता ही होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक से अच्छे से करा रहे हैं डीपली. आफ्टर दैट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, because previous year questions will give you a glimpse of how UPSC thinks. The question which is given, you need to prepare the options also. अगर क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आपने ऑप्शन सही मार्क किया, आपको सारे ऑप्शन प्रिपेयर करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ हिंट. If they are asking about a particular dance form and they give you 4 options of 4 different dance forms, one dance form, one option will be correct, but do not think that your job is done after preparing that one dance form. You need to prepare the other options also which are given. इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस साइमल्टेनियसली विद PYQ ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा. And the best part is that you have Super Kalam now with you to practice previous year questions and even to practice as many MCQs as you want to from art and culture after completing the chapters in history. हिस्ट्री से ही आर्ट एंड कल्चर निकलता है, तो आप जो एनसीईआरटीज प्रिपेयर कर रहे हो वहीं से आर्ट एंड कल्चर भी निकल के आ रहा है. आई शो यू अ डेमो. टुडे आई प्रिपेयर्ड, लेट्स से दी आई अंडरस्टूड अबाउट द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स. ठीक है, अब जब मैंने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, आई कैन नाउ डायरेक्टली प्रैक्टिस MCQs ऑन देम विद सुपर कलाम. सो हियर वी आर ऑन सुपर कलाम. आई जस्ट आस्क कि गिव मी 2 MCQs ऑन कुचिपुड़ी. ठीक है, मान लो मुझे कुचिपुड़ी पे प्रैक्टिस करना है. आई हैव स्टडीड कुचिपुड़ी टुडे, तो आई आस्क सुपर कलाम टू गिव मी 2 MCQs एंड सी कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म, कहाँ पर ओरिजिनेट किया. I'll just click on submit button, I'll get my score and I can practice the explanation. मान लो मेरे दोनों questions गलत भी हैं, at least I have the explanation with me now to practice, right? Now apart from this, you can also prepare art and culture from एनी ऑफ द स्टैंडर्ड स्टैटिक मटेरियल दैट यू हैव. ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कोई बुक है और आप उसको साइड में रख दो. आप वहां से भी रिवीजन तो कर ही सकते हो, बट डू नॉट स्किप दीज फंडामेंटल्स. इनको तो स्किप किसी हालत में नहीं करना है. दिस इज वेयर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम. इस साल चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, चोला आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ गया. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोला एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आ गया. सो व्हेन इन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री यू आर स्टडिंग अबाउट एनी एम्पायर, अंडरस्टैंड देयर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. उन्होंने हमारे कल्चर में, हमारे इतिहास के, संस्कृति में क्या कॉन्ट्रीब्यूट अपनी तरफ से किया है. इट कैन बी टेम्पल क्रिएशन, इट कैन बी बेटर टेम्पल आर्किटेक्चर, इट कैन बी एनी न्यू रिचुअल दैट दे इंट्रोड्यूस्ड, है ना. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी और कॉइन्स दैट दे इंट्रोड्यूस्ड. 2017 में गुप्ता एम्पायर से न्यूमिस्मैटिक के ऊपर क्वेश्चन आया था मेंस में. न्यूमिस्मैटिक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स एटसेट्रा. सो ऑल्सो ऑब्जर्व द पैटर्न कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री और मेंस में पैटर्न क्या बन रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में. अ स्पेसिफिक एम्पायर इज टारगेटेड, आई जस्ट क्रिएट इट ओवर हियर. एम्पायर यू आर स्टडिंग, you have to study its contribution. अगर आप contribution पढ़ लेते हो, then trust me, your art and culture will start getting prepared from here itself, and simultaneously make notes. It is as simple as it gets. इसको कॉम्प्लेक्स करोगे तो क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स करने के लिए और 2-3 किताबें खरीद लो जो मार्केट में अवेलेबल हैं. इससे क्या होगा कि दोज टॉपिक्स यू विल बी स्टडिंग जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो चीजें पढ़ना ही क्यों जो सिलेबस में ही नहीं है. एक्स्ट्रा इतना ओवरलोड करके दिमाग को फिर किसी सब्जेक्ट से डर बिठा लेना, ये गलत अप्रोच है. NCERTs, previous year questions, practice MCQs with Super Kalam, get your answers evaluated by Super Kalam. These are the 3-pronged step
और strategy that you need to follow when you approach art and culture. एंड एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में आएगा. आर्ट एंड कल्चर अगर प्रीलिम्स में हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स इन प्रीलिम्स, 8 to 10 मार्क्स. उसके लिए आप 2-3 डिफरेंट बुक्स, मार्केट का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिवाइज कंप्लीट एनसीईआरटी, रिवाइज देम, प्रैक्टिस एज मच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज यू कैन. लास्ट 13 ईयर्स के तो हमारे सुपर कलाम पर है ही. आप पिछले 5 साल की भी 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लग जाएगा. देखो रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता दिया, आई हैव टोल्ड यू द रिसोर्सेज. नाउ लेट मी आल्सो टेल यू द स्पेसिफिक की टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. ओके, जैसे कि रिलीजन एंड फिलोसफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन रिलीजन एंड फिलोसफी व्हाट आर द की टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन? वी हैव जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. प्लीज इसको लिख लीजिए वरना आप लोग ना स्किप आउट कर दोगे इसको. देन वी हैव द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी. इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, जैसे कि देखो जब हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में आते हैं, ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में क्या क्या आता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं, नॉट इन मेंस बट इन प्रीलिम्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. द सांख्या स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन बाय कपिला मुनि. देन वी हैव द योगा स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसफी, जिसके अंदर पतंजलि आ जाते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास न्याय स्कूल होता है, गिवन बाय गौतमा मुनि. ओके, देन वी हैव वैशेषिका. वैशेषिका इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज गिवन बाय कन्नडा मुनि. ओके, देन इन वैशेषिका के बाद हमारे पास आ जाता है जैमिनी मुनि के द्वारा दिया गया, बाय द सेंट जैमिनी, पूर्व मीमांसा फिलोसफी. एंड देन वी हैव वेदांता. वेदांता इज ऑल्सो नोन एज उत्तरा मीमांसा. ठीक है, अब इसके अंदर आ जाएंगे अद्वैत फिलोसफी, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, ठीक है, अचिंत्य भेद अभेद. तो ये सारी फिलोसफीज आ जाती है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजा, ये सब आ जाते हैं. इन सब की फिलोसफीज हैं जो आपको कवर करनी है. ठीक है, दे विल गिव यू द नेम ऑफ अ फिलोसफी, दे विल गिव यू द एसेंस ऑफ अ फिलोसफी, दे विल आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स गेव दिस फिलोसफी. तो वहां पर थोड़ा सा आपको रिकॉल, एक्टिव रिकॉल आपको हेल्प करेगा. वॉट एवर यू स्टडी यू क्लोज इट एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग इट. दैट हेल्प्स बिल्ड विजुअल मेमोरी इन योर माइंड. आपने कुछ चीज समझी, अब बुक क्लोज करके उस चीज को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो ऑन पेपर. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फाइनली इन एक्टिव रिकॉल. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. आफ्टर ऑर्थोडॉक्स स्कूल जब आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, यू हैव you whatever you are studying, whatever you are understanding, close the books and then try to write it down, jot it down. that is known as active recall, कि कितना आपको एक्टिवली याद रह पाता है ब्रेन में. ठीक है, अब इसके बाद अनऑर्थोडॉक्स स्कूल भी आता है जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चारवाका फिलोसफी आ जाती है. ठीक है, रिलीजन एंड फिलोसफी के बाद वी हैव द डांस फॉर्म्स, द क्लासिकल डांस फॉर्म, देन वी हैव द फोक डांस, देन वी हैव क्लासिकल म्यूजिक, and then we have the important musical instruments that you need to study. After that puppets, puppetry, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थिएटर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्कल्पचर. इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स तो आपको प्रिपेयर हर हालत में करने हैं, उसको तो छोड़ना नहीं है. सो दिस इज अ सम अप ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हाउ यू नीड टू अप्रोच आर्ट एंड कल्चर. आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. नाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आर्ट एंड कल्चर. इफ यू हैव एनी डाउट ना, you have your mentors Vimal sir and myself available. Super Kalam always is there. ask@kalam.in पर जाओगे आप, मेल आईडी है, कोई भी डाउट आता है इस मेल आईडी पे आपको बस वो मेल ड्रॉप करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप रिवाइजिंग.